Hello, Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Okay, I guess we have started chapter number 6 last time और उस chapter number 6 में हमने 6.1 भी complete कर लिया था and we also have completed 6.2 और आज हमने जो complete करना है that is 6.3. Okay, just give me a second. It will be an interesting lesson today because we have to learn about cybersecurity. Sorry, it was 5.3, not 6.3. Okay, so this is our section 3 of chapter number 5, and chapter number 5 is about data security. और देखते हैं कि हमारे पास डाटा सिक्योरिटी में क्या क्या है. सो साथ साथ आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछते रहने हैं. वैसे तो ये सिंपल सा टॉपिक है बट इट इज़ एन इंटरेस्टिंग वन बिकॉज वी लर्न द बिहेवियर ऑफ हैकर्स and eavesdropper, that how they just like compromise the data. Okay, the very first point is cyber security threats. Wherever there is a term cyber, so it simply sorry cyber, so it simply means anything by using computer. Either that is cyber security threat, so it means computer security. Cyber crime, it means computer crime, like by using computer, anyone is committing a crime. तो साइबर मींस कंप्यूटर. सो अभी हम साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को स्टडी करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर क्या है. So a cybersecurity threat is a type of threat that targets computer networks. So we are, or the hackers are there just to target your computer system. और आगे चलते हैं. These threats can come in the form of malware, phishing and other malicious activity. अब उन चीज़ों को हम देखते हैं कि क्या आते हैं. अच्छा, लिस्ट ऑफ साइबर अटैक्स में मैं जस्ट इंट्रो दूंगा और फिर आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं. The very first one is the brute force attack. Brute force attack means that, for example, if you want to hack someone's password and you are like guessing their passwords, or you're using some softwares to extract their password, that means brute force attack. Yeah. The next one is data interception, means you are sniffing somebody's data. कोई फोन पे बात कर रहे हैं एंड यू आर स्निफिंग कि क्या बातें चल रही हैं, सो दैट इज आल्सो डाटा इंटरसेप्शन. समवन इज टेक्स्टिंग अदर वन एंड यू आर जस्ट लाइक capturing the text, that means data interception. Distributed denial of service attack, it means we are hacking, or we are basically clogging up a web server so that a real user or a visitor can't be able to access it. Hacking is there. Different types of hacking are there. The point is that you are using somebody's data without their consent, or you are extracting somebody's data without their consent. Malwares में हम सारे malware study करेंगे. It means malicious softwares, any software which is harming the other computer system. Then comes phishing, farming. The purpose of both phishing and farming is to use the details of the other person, like their credit card details, and you are shopping, you are enjoying, और उस बेचारे को का क्रेडिट कार्ड बेचारा डेबिट ही होता जा रहा है. Then comes social engineering, which means you are creating any sort of situation for another person in which he or she will panic and will make a decision which will be harmful for that person. So this is social engineering. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं और इन सारों को अपनी डिटेल में करना है बिकॉज डिटेल में ही क्वेश्चन इसका आता है. तो नॉर्मली देखा ये गया है कि उन्होंने इनमें से लाइक फॉर एग्जांपल ब्रूट फोर्स अटैक है, फिशिंग है, फार्मिंग है, इनकी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है, इनकी डायग्राम्स आई हुई हैं लाइक लास्ट 2 3 पेपर्स, 3 इयर्स के पेपर्स आप देखेंगे तो. अच्छा चलें आगे चलते हैं. So a distributed denial of service attack is a malicious attempt to disrupt the normal traffic. अच्छा, पहले हम डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के ऊपर आते हैं. मैं सारों को सिनेरियो बेस्ड ही करके समझाऊंगा, आपको फौरन से समझ आ जाएगा कि क्या सिनेरियो. डिनायल ऑफ सर्विस अटैक क्या है. एक हमारे पास है अमेजोन और एक इधर से आ जाता है टीमो, राइट. और दोनों ने ब्लैक फ्राइडे अनाउंस कर दिया कि जी हम ब्लैक फ्राइडे अनाउंस करने जा रहे हैं ऑन अ स्पेसिफिक डेट. दोनों की डेट सेम है और इन्होंने भी ब्लैक फ्राइडे अनाउंस कर दिया एंड देयर इज लाइक 50% ऑफ, 40% ऑफ एंड ब्ला ब्ला जो भी था.
और डेट सारों ने डिसाइड की दैट ओके आर ब्लैक फ्राइडे विल बी एट 11/2/2026 एंड 11/2/2026। अच्छा, टीमू ने थोड़ा स्मार्टली प्ले किया। कैसे? उन्होंने कहा कि ओके लेट्स हायर अ हैकर, एंड उसको इन्होंने ड्यूटी दी दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू सेंड अ लॉट ऑफ ट्रैफिक टू amazon। मींस कि आपने जनरेट करने हैं बॉट्स, and those bots will access amazon। Every web server has a capacity to handle the number of users. Let's say amazon has a capacity to handle 5 or 50,000 users at the same time. Similarly, Temu is also having a capacity to handle 50,000। अच्छा, अब हम क्या करें? हैकर ने क्या किया, नंबर ऑफ बॉट्स को असाइन किया, एंड दे आर सेंडिंग रिक्वेस्ट टू amazon टू जस्ट क्लॉग अप देयर सर्वर। कि अगर एक ओरिजिनल यूजर आएगा, मींस ओरिजिनल बायर आएगा टू वांट टू बाय समथिंग, वो जब amazon पे जाएगा तो amazon वेबसाइट ही ओपन हो नहीं हो रही होगी। द रीजन इज बिकॉज देयर इज ऑलरेडी सो मच ट्रैफिक ऑन इट, द वेब सर्वर इज नॉट हैविंग दैट कैपेसिटी टू हैंडल सम मोर ट्रैफिक। अब इस सिनेरियो में क्या होगा कि आप अगर, या यूजर जो है वो amazon से बाय करने गया था चीजें, amazon तो नहीं एक्सेस हो रही, हो कहेगा चलो ठीक है मैं टीमू पे चला जाता बाय करने चीजें। सो इट मींस कि अगर टीमों के पास 5,000 कस्टमर्स आ रहे थे बाय करने, तो अब इसके 5,000 भी आ जाएंगे तो उनकी ऑटोमेटिकली सेल्स अप हो जाएंगी। और अमेजोन बेचारा देख रहा होगा कि इतनी ज्यादा ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे है बट हमारी सेल्स ही नहीं हो रही, सारी सेल्स तो टीमों की हो रही हैं। सो इट मींस ब्लैक फ्राइडे गुजर गया और टीमू ने ठीक ठाक एंजॉय भी कर लिया, और मींस उनकी सेल्स अप हो गई। सो दिस इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। So, a distributed denial of service attack is a malicious attempt to disrupt the normal traffic of a targeted server, services, or network by overwhelming the target or its surrounding infrastructure with the flood of internet traffic। ठीक है, अब वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता कैसे है। तो DDoS attacks are carried out with the networks of internet connected machines, वही bots की बात हो रही है। These networks have been infected with malwares, allowing them to be controlled remotely by an attacker. Once botnet has been established, the attacker is able to direct an attack by sending remote instructions to each bot. When victim server or network is targeted by the botnet, each bot sends request to the target's IP address। तो वो देखिए वो bot access कर रहा है उस web server को again and again with like thousands of other bots or thousands of requests। ठीक है, which will resulting in the denial of service attack। तो आई गेस ये बात क्लियर होगी बिकॉज ईच बॉट इज लेजिटिमेट इंटरनेट डिवाइस, सेपरेटिंग द अटैक ट्रैफिक फ्रॉम नॉर्मल ट्रैफिक कैन बी डिफिकल्ट। अब मुझे बताएं, इस पूरे पैराग्राफ को रीड करके अगर वो आपसे पूछेगा कि हाउ टू इनिशिएट डी डॉस अटैक और राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ डी डॉस अटैक, सो यू जस्ट हैव टू राइट दीज 5 पॉइंट्स। एंड ये चीज समझ आई कि डी डॉस है क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक क्या है। तो ये होता ही है कि जो लोग साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होते हैं ना, वो लाइक नेगेटिव पर्पसेस के लिए भी अपनी उसको यूज कर रहे होते हैं, अपनी स्किल्स को यूज कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर टीमू ने ऐसा पर्सन हायर करके ये काम करवाया, ऑल दो इट इज एन अनएथिकल थिंग बट पीपल डू दिस टू अर्न मनी। या आगे चलते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि डेफिनेटली जब इतनी बड़ी कंपनीज हैं, लाइक टीमू है, amazon है, दराज है, देयर सो मेनी अदर कंपनीज, उनको तो ये आइडिया होगा कि ओके कोई पर्सन हमारे सिस्टम के साथ भी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक इनिशिएट कर सकता है। So let's say they are hiring you people that okay you are our network administrator and you just have to see कि क्या हमारे सिस्टम पे कोई इस तरह का अटैक तो नहीं हुआ, अगर हुआ है तो आपने हमारे सिस्टम को कैसे सिक्योर करना है। इट्स एन एथिकल जॉब और आप इस जॉब के लिए हायर हो गए हैं। अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके सिस्टम पे डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक तो नहीं इनिशिएट हो गया। तो कैसे पता चलेगा? अच्छा, आप देखेंगे कि देयर इज सो मच ट्रैफिक ऑन आवर वेब सर्वर एंड सेल्स नहीं हो रही लेकिन ट्रैफिक इतनी ज्यादा है। सो इट मींस you'll हैव एन आइडिया कि अच्छा ये ट्रैफिक फेक ट्रैफिक है, इट इज नॉट ओरिजिनल वन, दीज आर नॉट ओरिजिनल विजिटर्स।
अच्छा, a flood of traffic from users who share a single behavioral profile such as device type, geolocation और web browser। एक सेम आईपी से या सेम लोकेशन से रिक्वेस्ट आ रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सारी रिक्वेस्ट एक पर्टिकुलर एरिया से आ रही हैं, लाइक इस्लामाबाद से सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं, ऑल दो इट्स एन इंटरनेशनल वेबसाइट। अभी सारी इस्लामाबाद से क्यों आ रही है? इट मीन्स कि वो अटैकर इस्लामाबाद बैठा हुआ है, सेम आईपी यूज कर रहा है और एक्सेस कर रहा है नेटवर्क को। An unexplained surge in request to a single page. There are so many pages on Amazon and Temu and any other website. Why all the traffic is on a single page? Why not the other pages? Odd traffic patterns such as spikes at odd hours of the day or patterns that appear to be unnatural. अब आप कहेंगे कि ये क्या, हर 10-20 मिनट्स के बाद एकदम से ट्रैफिक आ जाती है वेबसाइट के ऊपर, सो यू ऑल्सो गेट एन आइडिया फ्रॉम दैट। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक खैर आया नहीं है, कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ डीडोस अटैक। अच्छा, अब आप तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर थे, अब आप उसको किस तरह से सिक्योर करेंगे, वो तो हमने आइडेंटिफाई किया था। सो यूजिंग एन अप टू डेट malware checker, it means you'll install an antivirus on your web server so that if such type of things will be installed on your web server, तो आपका वो malware checker उसको चेक करके आपको आइडेंटिफाई कर देगा। You should install a firewall so that it can check the incoming and outgoing traffic। इसको हम डिटेल में firewall को पढ़ेंगे। You can also apply email filters। Let's say somebody wants to initiate a DDoS attack on your email server, तो उस टाइम के ऊपर आप unwanted emails को filter out कर सकते हैं। So these are some of the things to secure your system। मुझे बताएं, आई गेस ये क्लियर हो गए हैं दोनों पॉइंट्स। मींस ये वाला भी, हाउ टू आइडेंटिफाई एंड हाउ टू गार्ड। ओके, दैट्स परफेक्ट। देन कम्स ब्रूट फोर्स अटैक। अच्छा, आपने ये सोचा कि ओके, लेट्स से मेरा कोई फ्रेंड है, या फॉर एग्जांपल मेरा कोई क्लास फेलो है, या कोई ऐसा पर्सन है, द पर्सन यू डिसलाइक, एंड यू जस्ट वांट to access his Instagram or Facebook or Twitter or something like this, and now you are initiating a brute force attack। अब ये brute force attack में एक ऑप्शन तो ये है कि आप पासवर्ड्स गेस करोगे कि उसका पासवर्ड क्या है, और मल्टीपल अटेम्प्ट्स करोगे विद दोस पासवर्ड्स। ओपन हो गया तो वेल एंड गुड, ना ओपन हुआ तो you'll install a software and it is applying multiple combinations on the website, like on Instagram or on X or wherever you want to access। it is applying, it is generating multiple passwords, applying it one after the other। जो successful हो गया वो सॉफ्टवेयर आपको बता देगा। so it means कि okay, this is brute force attack। so brute force attack is a hacking method that uses trial and error। तो ये trial and error क्या था? you are generating, or your software is generating multiple passwords and applying on that website, so it is trying again and again and again just to crack the password। अब उसमें लॉगिन डिटेल्स भी हो सकती हैं, इंक्रिप्शन कीज भी हो सकती हैं। इट इज सिंपल येट रिलायबल टैक्टिक फॉर गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो लोग ये यूज करते हैं, दैट्स व्हाई आगे सिस्टम्स ने अटेम्प्ट्स लगाई हुई होती हैं दैट यू कैन मैक्सिमम अटेम्प्ट 3 रॉन्ग पासवर्ड्स और 3 अटेम्प्ट्स, ताकि अगर कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर इनेबल हो गया है तो वो थर्ड के बाद इवन फोर्थ करेक्ट पासवर्ड भी गेस कर लेते हैं, सो सिस्टम विल नॉट ओपन दैट with using that software। तो वो एक security feature है। then आगे, the hacker tries multiple usernames and passwords, often using a computer to test a wide range of combinations until they find the correct login information। ठीक है, so brute this is how brute force attack works। अच्छा जी, आगे चलते हैं। I hope this thing is clear। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम लेट मी नो। अच्छा, ईमेल फिल्टर्स क्या होते हैं? ईमेल फिल्टर्स ये होते हैं कि लेट से आपको एक ईमेल आ रही है किसी भी कंपनी की, वो अपनी एड्स भेज रहे हैं, तो आप उनको ना अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिल्टर लगा सकते हैं कि ओके, दीज आर द ईमेल एड्रेसेस, आई जस्ट डोंट वांट द ईमेल्स फ्रॉम दीज ईमेल एड्रेसेस इन द फ्यूचर, सो दैट मींस ईमेल फिल्टर्स। अच्छा, ये मूसा का क्वेश्चन था। देन कम्स हैकिंग। हम्म हैकिंग में क्या करना होता है आपने? यू वांट टू एक्सेस somebody's data without his consent। है तो इंटरेस्टिंग चीज, बट अनएथिकल है। अच्छा, hacking is generally the act of gaining illegal access
टू अ कंप्यूटर सिस्टम विदाउट द यूजर्स परमिशन। तो आप यूजर की परमिशन के बगैर वो डाटा एक्सेस कर रहे हैं। दिस कैन लीड टू आइडेंटिटी थेफ्ट। अच्छा, अब आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है? लेट्स से उस्मान ने रेयान का इंस्टाग्राम हैक कर लिया है, एंड नाउ उस्मान इज यूजिंग रेयान्स आईडी, और जो रेयान के फॉलोअर्स हैं उनको यही पता चलेगा कि अच्छा रेयान ही की आईडी है, तो देयर इज रेयान बिहाइंड इट बट देयर इज उस्मान बिहाइंड इट। एंड अब वो किस वे में यूज करता है आईडी, इट इज अप टू हिम। सो दैट इज बेसिकली आइडेंटिटी थेफ्ट। अच्छा, आगे चलते हैं। हैकिंग इन साइबर सिक्योरिटी refers to the misuse of devices like computers, smartphones, tablets, and networks to cause damage or to corrupt the systems, gather information on users, steal data and documents, or disrupt data related activity। तो ये तो खैर आप सारों को पता है कि हम लोग हैकिंग या हैकर्स हैकिंग क्यों करते हैं। फाइनेंशियल डाटा एक्सेस करने के लिए, पर्सनल डाटा एक्सेस करने के लिए, आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए, दे माइट बी मैनी गोल्स। ओके। अच्छा, देन देयर आर सम टाइप्स ऑफ हैकिंग। एक हैकिंग है एथिकल हैकिंग और एक हैकिंग है मैलिशियस हैकिंग। एथिकल हैकिंग क्या है? आप कहते हैं कि ओके, आई वांट टू बिकम अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, you'll do the degree. It is a 4 year degree in most of the universities. So they will teach you about hacking, that how to hack the systems, right? And how to, like, you can say that open the systems, or how information is compromised, and these sort of stuff. But they are teaching you so that in the future you can protect the computer systems. It means, let's say Timu is hiring you and they're asking you to hack their own systems, and letting the developers know कि इस सिस्टम में लूप होल्स कहाँ हैं, कि अगर एक ओरिजिनल हैकर आएगा तो वो कहाँ कहाँ से हैक कर सकता है सिस्टम। you're just like explaining them each and everything, और वो उनके डेवलपर्स उस वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, मींस उनको सिक्योर कर रहे हैं सिस्टम को। ये एथिकल हैकिंग है। बिकॉज आपको टीमू ने हायर किया और टीमू ने कहा कि हमारी ही वेबसाइट हैक करो, टू लेट अस नो कि हमारा सिस्टम कहाँ कहाँ से वीक है। दिस इज एथिकल हैकिंग। लेकिन आप कहते हैं कि सर दे आर ओनली पेइंग अस 400,000 रुपीज एंड दिस इज नॉट अनफ फॉर अस, वी वांट टू अर्न मोर मनी। सो व्हाट विल यू डू? आप चले जाते हैं मेलिशियस हैकिंग में। आप कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ हैकिंग देयर सिस्टम, लेट्स हैक सम बैंक्स, लेट्स हैक सम अदर वेबसाइट्स, लेट्स हैक सम क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, and now like you are earning, like instead of 400,000 you're earning 400,000। so that means that is malicious hacking, but I am totally not asking you to do this, ठीक है, because it is unethical। yeah. So malicious hackers, also referred to as a black hat hackers, operate with malicious intent to compromise security, steal sensitive data, or disrupt systems. Their motivation varies from financial gain to ideological reasons, seeking personal benefit at the expense of others. Okay, so this is how this malicious hacking works. मुझे बताएं, यहाँ तक क्लियर हुआ? एनी क्वेश्चन? लेट मी नो। यू वांट टू बिकम अ malicious hacker और कौन सा हैकर, एथिकल हैकर? आपका क्या गोल है? लेट मी नो। आगे हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मेलवेयर्स। ओके राइट रीना, फिर आपसे जेल में मुलाकातें ही हो सकेंगी। I'll go in some other computer related field. Okay, perfect. अच्छा, then there are some malwares, and सारे malwares को स्टडी करते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग malwares हैं। The very first one is viruses। अच्छा, अब ये viruses का क्या रोल है? कंप्यूटर वायरसेस की बात कर रहा हूँ। कंप्यूटर वायरसेस में होता ये है दैट अ वायरस इज बेसिकली डाउनलोडेड ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम समवेयर, और इट कैन कम फ्रॉम अ फ्लैश ड्राइव और फ्रॉम एनी लाइक सोर्स। अब वो एक फाइल में पहले आएगा, then it will generate copies, right? It will generate copies in first drive, then in the second drive, then in the first folder, in the second folder. It will keep on replicating exponentially. Wherever ever it is replicating itself, it is damaging the data, damaging the files, corrupting the information। ठीक है, तो ये वायरसेस के काम होते हैं। तो वो जैसे कोविड एक्सपोनेंशियली ग्रो किया था ना, इसी तरह कंप्यूटर वायरस भी ऐसे ही
ग्रो करता है। अच्छा, देन कम्स वॉर्म्स। वॉर्म्स भी वायरसेस ही होती हैं, लेकिन दे यूजुअली कम फ्रॉम द नेटवर्क्स, they usually come from the internet. The purpose is same, to delete the data, but the way is different, that they only come from the networks, yes, to search out computers with weak security that are prone to such attacks. अच्छा जी, आगे चलते हैं। टॉर्जन हॉर्सेस। अच्छा, अब ये टॉर्जन हॉर्सेस क्या हैं? लेट्स से मैं आपको ये कहता हूँ कि अच्छा, कल से क्लास ना जी मीट पे होगी एंड यू हैव टू इंस्टॉल दैट सॉफ्टवेयर। आप कहते हैं ओके सर, वी आर रेडी फॉर दैट। आपने शाम को या जब भी अपने फ्री टाइम के अंदर जी मीट को डाउनलोड किया, आप जिस वेबसाइट पे गए दैट वाज अनऑफिशियल वेबसाइट, इट वाज नॉट एन ऑफिशियल वेबसाइट, दैट वाज एन अनऑफिशियल वेबसाइट। उधर जी मीट का लोगो भी था एंड देयर इज अ सॉफ्टवेयर फॉर दैट, यू जस्ट हैव डाउनलोडेड इट। It looked like कि अच्छा आप Gmeet डाउनलोड कर रहे हैं, but when you downloaded it and double clicked on it, there was a virus behind it, because they totally misguided you that it was Gmeet, but actually there was a virus behind it. You just double clicked on it, it installed on your computer system, and it damaged all your data. So that means this was a Trojan horse, because it totally disguised you. सो दिस इज हाउ ट्रोजन हॉर्सेस वर्क। कुछ लोग भी हमारी लाइफ में ना ट्रोजन हॉर्सेस वाला रोल प्ले करते हैं, ऊपर से और होते हैं अंदर से और होते हैं। सो दीज आर malicious programs often disguised as legitimate software. They replace all the part of the legitimate software with the intent of carrying out some harm to the user's computer system। ठीक है, तो आई गेस आपको बहुत सारे ऐसे लोग याद भी आए होंगे जो ट्रोजन हॉर्स की तरह काम करते हैं। अल्लाह करे ना ही ऐसे लोग मिला करें आप लोगों को। So, is it clear, everyone, so far? Any problem? Anyone? Any question relevant to viruses, worms, Trojan horses? नहीं है। That's great. ठीक है जी। Then comes spyware। अब ये spyware क्या है? Spy, the person who is following you, and spyware it means this is a software जो आपको follow कर रहा है। ओके, अब सिनेरियो कुछ इस तरह है, लेट्स से मैंने किसी के भी लैपटॉप के ऊपर ये स्पाईवेयर इंस्टॉल कर दिया। Now I am the originator because I just have installed a spyware on your computer system. Whatever you'll type from your keyboard, I'll have that data with me. It means कि आपने पिन कोड लगाया, वो भी मेरे पास कीज आ गई in the form of text file. Then you, like for example, logged into your email ID and you just type the password, I'll get that information. Everything you will type from the keyboard, I'll get that information because I just have installed the spyware. वैसे तो I'm not interested, but this is the story to tell you. So software that gathers information by monitoring, for example, all the activity on a user's computer, the gathered information is then sent back to the person who sent the software. ठीक है? और sometimes spyware monitors key presses and is then referred to as a key logging software. ठीक है? So this is also an interesting software. Then comes adware। अच्छा, अब इसमें क्या होगा? For example, you just want to see a match, a live match, but your homies are not allowing you to give you the remote। अब आप कहते हैं कि अच्छा ओके, आई विल सी इट ऑन वेब। आप गूगल ओपन करते हैं, यू जस्ट लाइक टाइप लाइव स्ट्रीमिंग whatever the match is, and there are multiple websites, you just click on any of the websites, और उसके ऊपर एड्स ही एड्स हैं। आप एड्स के क्रॉस पे क्लिक करते हैं, वो एक नया लिंक ओपन हो जाता है एंड द थिंग्स कीप ऑन रिपीटिंग। सो इट मींस उस वेबसाइट के ऊपर एडवेयर इंस्टॉल हुआ है। मींस सॉफ्टवेयर दैट फ्लड्स यूजर्स कंप्यूटर विद अनवांटेड एडवर्टाइजिंग, usually in the form of pop-ups, but can frequently appear in the browser address window, redirecting the browser to a fake website which contains promotional adverts। ठीक है, तो आई गेस ये भी क्लियर हो गया एडवेयर क्या है। देन द लास्ट वन इज रैनसमवेयर। अच्छा, दिस इज अ वेरी डेंजरस सॉफ्टवेयर। ओके, रैनसमवेयर में ये होता है कि इट इज इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम, जिसके कंप्यूटर पे भी इंस्टॉल हो जाता है उसका सारा पर्सनल डाटा लॉक हो जाता है, एंड उसकी की किसके पास होती है? द पर्सन हु जस्ट हैव इंस्टॉल्ड रैनसमवेयर। नाउ दैट पर्सन विल कॉल यू एंड विल आस्क यू दैट आई हैव ऑल योर डाटा, राइट?
and that is also locked. You can't open it. You have to pay some money to me, and then I'll give you the key, means give you the password, and you can open or view your information. So that is ransomware. So programs that encrypt the data on the user's computer, a decryption key is sent back to the user once they pay a sum of money. They are often sent via Trojan horse or by social engineering. अब मुझे बताएं कि ये सारे के सारे मीन्स अभी नेक्स्ट थ्री आर क्लियर और नॉट. Everyone let me know. ओके परफेक्ट. देन हम चलते हैं आगे और हाँ अब हम फिशिंग के ऊपर आते हैं. ये फिशिंग क्या है ये वही वाली फिशिंग, FISHING वाली. मींस हम किसी को फिश बनाएंगे. देखते हैं कैसे. अच्छा, अब इसमें भी एक सिनेरियो लेते हैं. फिशिंग में ये होता है कि आपको ना एक ईमेल आती है. ठीक है, एंड ईमेल इज लेट से आपको ईमेल आई apple.com से. ठीक है, या www.apple@gmail.com से. ठीक है, आपको एक ईमेल रिसीव हुई दैट देयर इज अ फ्लैट 50% ऑफ ऑन ऑल द स्टॉक. either that is iPhone 17 or 17 Pro Max or so on. अच्छा, आप बड़े खुश हो गए दैट ओके, हमें 1200 पाउंड्स वाला फ़ोन जो है वो 600 में मिल रहा है. वेरी हैप्पी. And you just opened the email, opened the website, and you just ordered it by using your dad's credit card. उनको बताए बगैर. ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अभी आ जाएगा फ़ोन और फिर हम उसको सेल करेंगे. चलें 1200 का नहीं तो 1100, स्ट्रेट 500 प्रॉफिट है. सो विल गिव देम मनी, 100 एक्स्ट्रा दे देंगे. तो ही वो भी हैप्पी होंगे, आप भी हैप्पी होंगे. आपने जस्ट बाय कर लिया. ठीक है, जस्ट क्लिक्ड ऑन द लिंक एंड देयर इज अ पिक्चर देयर एंड दे आस्क यू दैट ओके इट विल बी डिलीवर्ड इन 3 days. 3 days क्या, 30 days गुजर गए, कुछ भी नहीं आया और अमाउंट सारी डिडक्ट हो गई. तो अब वो मुझे नहीं पता कि यहाँ से क्या होगा आपके साथ, बट द पॉइंट इज कि सारी की सारी मनी डिडक्ट होगी बट कुछ भी ना मिला आपको. सो इट मीन्स आपके साथ ये जो स्कैम हुआ है, दिस इज फिशिंग. ठीक है, आप फिश बने हैं और हैकर ने आपके साथ फिशिंग की है. सो फिशिंग occurs when a cyber criminal sends out legitimate looking email. Means it looked like a legal email but it was not. The email may contain links or attachment that when initiated take the user to a fake website. वो जिस वेबसाइट पे आप गए थे वो उन्होंने apple.com जैसी ही बनाई हुई थी but it was not that website. क्योंकि उनकी वेबसाइट में लिखा हुआ था APPLE.com, लेकिन आपने इतने गौर से उस टाइम देखा नहीं था क्योंकि आपको तो ऑफर नजर आ गई थी. और they may trick the user into responding with personal data, for example bank account details, credit card, debit card details. ठीक है, अब जरा आप इस डायग्राम को देखो. हुआ ये कि ये अटैकर था. he just sent you the email. ठीक है. अच्छा, आपने उस ईमेल के लिंक पे क्लिक किया, इट टुक यू टू अ फिशिंग वेबसाइट. आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन उसको दी और अटैकर ने उसको यूज किया फॉर लाइक हिज ओन शॉपिंग. उसने शॉपिंग करनी होगी तो उसने आपके कार्ड से आराम से शॉपिंग की, वो जितने भी उसने आपसे 600 500 600 पाउंड्स लिए थे. तो मुझे बताएं, आप फिशिंग क्लियर है? इसको डायग्राम के साथ प्रिपेयर करना है. ये डायग्राम भी आती है पेपर में. एवरीवन लेट मी नो, is it clear or not? Okay, that's great. अच्छा, देन कम्स, अच्छा अब हमने प्रिवेंट कैसे करना है फिशिंग अटैक्स को. देयर आर सो मेनी स्कैम्स इन द मार्केट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैम्स इन द मार्केट. द पॉइंट इज दैट हाउ विल वी प्रिवेंट दैट. सो यूजर्स नीड टू बी अवेयर ऑफ अ न्यू फिशिंग स्कैम्स.
तो आपको ना आजकल जो फिशिंग स्कैम्स हो रहे हैं इसका पता होना चाहिए क्या चल रहे हैं. It is important to not to click any email links unless totally certain that is safe to do. So that first of all, you should see that where that email is coming. There is a link inside it. Then again, you have to see that either I should click on this link or not. It is important to run anti-phishing toolbars. Okay, these are types of the softwares you can install. अगर आप install करेंगे तो इस तरह की emails junk में चली जाएंगी directly. Always look up for the HTTPS. मीन्स जब आप वेबसाइट को ओपन करेंगे तो स्टार्ट में देखें HTTPS लिखा हुआ है एंड देयर इज अ पैडलॉक साइन देयर. अगर है तो ठीक है, वेल एंड गुड. रेगुलर चेक्स ऑफ ऑनलाइन अकाउंट्स आर आल्सो एडवाइजेबल. अपने वही बैंक अकाउंट्स को चेक करते रहा करें अगर उसमें कुछ है तो, अदरवाइज रहने दें. इंश्योर एन अप टू डेट ब्राउजर इज रनिंग. जो वेब ब्राउजर है वो ओल्ड वेब ब्राउजर ना इंस्टॉल करें, न्यू को ही यूज करें बिकॉज इसमें सिक्योरिटी फीचर्स इनेबल्ड होते हैं. बी वेरी वेरी ऑफ पॉपअप्स एंड यूज द ब्राउजर टू ब्लॉक देम. वो मल्टीपल पॉपअप्स अपीयर हो रहे हैं तब भी आपको जो है वो देखना है कि ओके ये पॉपअप्स किससे रिलेटेड हैं. सो दीज आर लाइक सम ऑफ द ways to prevent phishing attacks. अच्छा, then comes farming. Farming and fishing same है, but the way to attack the person is a different thing, different one. Farming में क्या होता है? Farming में कोई person आएगा, let's say टीमू है, टीमू की वेबसाइट है या amazon की वेबसाइट है. जो अटैकर है उसने क्या किया कि वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया टीमू के वेब सर्वर के ऊपर जहां पर वो वेबसाइट पड़ी हुई थी. अब अगर ओरिजिनल यूजर आता है उस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए तो ये फिशिंग सॉरी फार्मिंग सॉफ्टवेयर उसको रीडायरेक्ट कर देगा फेक वेबसाइट के ऊपर विच लुक लाइक अ टीमू बट इट इज नॉट. और वो जितनी भी पेमेंट करेगा वो उस पेमेंट को नेगेटिवली यूज करेगा. नॉट फॉर दैट थिंग, वो टोटली स्कैम कर रहा है उसके साथ. सो फार्मिंग इज malicious code installed on user's computer or an infected website. The code redirects the user browser to a fake website without the user's knowledge. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फिशिंग अटैक इज ओनली लिमिटेड टू ईमेल्स. यस, और डुप्लीकेट वेबसाइट्स ऑन ब्राउजर्स आर आल्सो पार्ट ऑफ इट. नहीं, देखो जो फिशिंग अटैक है ना उसमें आपको एक ईमेल ही आएगी कि जिसमें लिंक पड़ा हुआ होगा. अब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको फेक वेबसाइट पे ले जाएगा. दिस इज द वे. आई होप यू गॉट दैट. तो दिस इज द वेबसाइट. इसको भी आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है, क्योंकि इसकी ना वो डायग्राम्स आ रही होती हैं पेपर के अंदर 4 4 मार्क्स की. तो दैट इज द रीजन. अच्छा, ये देखो, ये क्लाइंट है, ये हमारा डोमेन नेम सर्वर था. इसके ऊपर उसने अटैकर ने क्या किया, ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया. जस्ट यू वांट टू एक्सेस द ओरिजिनल वेबसाइट, तो इंस्टेड ऑफ रियल वेबसाइट पे लाने के वो आपको फेक वेबसाइट पे ले जाता है. ठीक है, तो यही आपने इसकी डायग्राम को प्रिपेयर करना है. अब पॉइंट ये आता है कि अच्छा अब हम इस फार्मिंग से कैसे बचें. अगेन टीमू amazon इन्होंने आपको हायर किया दैट आपने डीडॉस से तो हमें प्रिवेंट करवा दिया, अब हमें आप फार्मिंग से भी जो है वो सिक्योर करें. आप क्या करेंगे, आप कहेंगे ठीक है, ओके, आई विल इंस्टॉल एन एंटीवायरस ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम, मींस ऑन द वेब सर्वर, so that if somebody is there to install these farming software, so this antivirus will not let them install. Acha, then many modern browsers can alert user to farming and phishing attacks. Now it means you'll send the notification to your visitors that please install the latest web browser in order to access our website. It is very important to check the spelling of the website. और आप visitors को ये भी कहेंगे that every time when you want to visit us, just see the spellings of the website. Let's say आपको वो उसने रेफर कर दिया www.temu.com. एक्चुअल स्पेलिंग्स वर TEMU, और अमेजोन के अंदर AMAAZON लिखा हुआ है. सो इट मीन्स वो एक फेक वेबसाइट का है. यूज ऑफ HTTPS और द पैडलॉक साइंस, ऑलवेज लुक आउट फॉर दीज थिंग्स. ठीक है, आई होप यू गॉट दैट. आगे चलते हैं. सो आई गेस यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा. देन देयर आर सम फ्यू थिंग्स लेफ्ट. आई गेस इट विल बी कवर्ड इन tomorrow's lesson. So far, if you have any question, let me know. If you don't have, so that's it for today.